Praise the Lord. Hallelujah. Amen. How many of you would like to talk about Jesus to others? Lift your hands. How many of you would like to share the goodness of God to others? परमेश्वर की भलाई के बारे में दूसरों को बांटने के लिए कितने लोग आशा करते हो? हाथ उठाइए. May God bless your desire. How many of you would like to go to South Africa to go and claim the word of God? South Africa कौन जा सकता है claim करने के लिए? My wife. Okay, I'm not paying your ticket. Okay. She knows she got a rich husband. But Gideons can do it. Hallelujah. 199 countries, my friend. इतने शहर भी हमने नहीं गए, but वो इतनी देशों में हैं. Okay. So, thank you so much, Brother Andrews, Dr. Andrews, for sharing this wonderful opportunity to invest in God's kingdom. मैं आपसे उत्साहित करूँगा जो भी आपने निर्णय लेना है देने के लिए आप दुगना दीजिए. Amen. Because you need double blessings. Amen. So जो भी आज collection होगा अपना online में as well as cash, everything will go to Gideons. Amen. As soon as the service is over, it will be transferred. Okay. So we want to pass on the blessing, and it's a great time to be in God's presence. Hallelujah. Amen, amen and amen. And everybody has had a Gideon experience. मेरे पास भी एक छोटा सा, जब मैं बच्चा था मेरे घर में एक मरून कलर का छोटा सा गिडियन बाइबल होता था और देखते ही बड़ा प्यारा लगता कि लेदर बाउंड एंड इट इज गोल्ड प्रिंटेड. इट्स सो ब्यूटीफुल. तो उस समय हम अंग्रेज पढ़ने नहीं आते थे, बट उसको देखता था मैं. सो वंडरफुल. एंड आई नो वन डे आई लव दिस. I would say, according to me, the luminaries of ministry sitting in our church. Amen. Hallelujah. God is a good God, and we'll continue to pray for Brother Andrews and the regional director here. Let's just stretch out our hands and pray for him, shall we? आइए हम हाथ बढ़ा के हम ब्रदर के लिए और उनके सहायक के लिए प्रार्थना करेंगे. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for this great ministry that you've given to Brother Andrews and his associate here in Gurgaon, Father. I pray that wherever they go, they may enjoy the favor of people, God. Open the barn doors of heaven and pour out a blessing that there is no place to contain in their family, in their personal life, and in their ministries, Lord. Thank you for this great opportunity to walk with Gideons, Lord, to take your word to the farthest corners of this world, Father. We pray great health, long life, amazing family, prosperity, and relationships and social status in both your lives. In Jesus' precious name I pray. Amen, amen, amen. Thank you so much. Are you all ready for the word of God? Yes. So this month's word, इस महीने का वचन एशाया 43 16 से लेकर 19 तक है. Rowan, can we have that Hindi transliteration on the screen, please, of NLT? हिंदी जो मैं NLT से मैंने इस वचन को लिया ताकि उसमें आपको अर्थ अच्छा समझ में आएगा. उस NLT वर्शन हिंदी में नहीं है, इसलिए उसको मैंने सीधा ट्रांसलेट करके भाई को दिया. अभी उस स्क्रीन में डालेंगे, हम पढ़ सकते हैं. मैं पढ़ता हूँ आपको. मैं यहोवा हूँ जिसने जल के बीच में से मार्ग निकाला. इज इट कमिंग अप ब्रदर? ऑलराइट. वर्क ऑफ द टेबल. Isaiah 43 16 to 19 NLT I'm going to tell you. I am the Lord who opened the way through the waters, making a dry path through the sea. I called forth the mighty army of Egypt with all its chariots and horses. I drew them beneath the waves and they drowned, their lives snuffed out like a smoldering candle wick. But forget all that. It is nothing compared to what I am going to do now. For I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry waste land. Hindi में, can somebody read this in the mic, please? What is shown on the screen? मैं यहोवा हूँ Mic. चेक. मैं यहोवा हूँ जिसने जल के बीच में से मार्ग निकाला, समुद्र के माध्यम से एक सूखा रास्ता बनाना. मैंने मिस्र की सामर्थी सेना को बुलाया, अपने सभी रथों और घोड़ों सहित. मैंने उन्हें लहरों के नीचे खींच लिया और वे डूब गए. उनका जीवन सुलगती हुई मोमबत्ती की तरह बुझ गया. परंतु वे सब भूल जाओ, मैं जो करने जा रहा हूं उसके तुलन में ये कुछ भी नहीं है. दैट इज द की वर्ड.
हालेलुया। क्योंकि मैं कुछ नया करने वाला हूं, देखो मैं पहले ही शुरू कर चुका हूं। क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? मैं जंगल से मार्ग बनाऊंगा और सूखी बंजर भूमि से नदियां बहाऊंगा। नाउ ध्यान से देखने वाला चीज यह है कि पुराना नियम में सबसे जबरदस्त चमत्कार लाल समुद्र को दो भाग करना, और कई सारे चमत्कारें हुई है। प्रभु कह रहा है कि मतलब वो तो कुछ भी नहीं है जो मैं अब करने वाला हूं आपके जीवन में। हालेलुया। ये सारे चीज प्रभु कर रहा है। चमत्कार वो करेगा, लाल समुद्र को दो भाग वो करेगा, है ना, और सूखी भूमि में नदी वो बहाएगा। यस और नो? हमें एक चीज करना है। क्या है? देयर इज वन थिंग दैट यू नीड टू डू अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, एंड इट इज it's a question. It's a question. What is that? क्या है वो? क्या आपको दिख नहीं रहा है? Don't you see it? Hallelujah. I'm already seeing. Gideon just stepped into our church. This month something brand new has happened. Hallelujah. And in your life it is starting to happen. Amen. All we got to do is see what God is doing. Okay, so we're going to focus. आज हम देखने वाले हैं कि हमारी तरफ से जो करना है, इस चमत्कारों को हमारे जीवन में पूरी तरीके से प्राप्त करने के लिए उसके बारे में एक बार नजर मारेंगे। परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में जो अद्भुत चीजें करते आ रहा है, आने वाले दिनों में और जबरदस्त तरीके में करने वाले हैं। इन चीजों को टोटल प्राप्त करने के लिए आपको मन की आंखें खोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जैसा एफिसियों में पौलुस बोलता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी मन की आंखें खोलें ताकि आप उस सामर्थ को, उस शक्ति को देख सकते हो जो प्रभु ने इस्तेमाल किया जब उन्होंने मरे हुए से यीशु मसीह को जिलाया। हालेलुया। सो इवन पॉल्स प्रेयर इज दैट ओपन द आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आमेन। हालेलुया। सो व्हाट इज द चैलेंज? इधर हमारी चैलेंज क्या है, दिक्कत क्या है, आइज ऑफ अंडरस्टैंडिंग खोलने में क्या है? लेट्स क्विकली गो टू 2 Corinthians 4:4। 2 कोरिन्थियों 4:4 में चलते हैं। आई एम रीडिंग फ्रॉम NLT। Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand the message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Can we read in Hindi, please? 2 Corinthians 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमयी सुसमाचार का प्रकाश उन पर से ना चमके। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है, शैतान का एक नाम दिया गया। क्या है वो? He is the God of this world, small g in NLT। हिंदी में क्या है ब्रदर? इस संसार के ईश्वर ने। इस संसार की ईश्वर ट्रांसलेशन गलत है। मैं बताता हूं, हमेशा हिंदी में ट्रांसलेशन बहुत कमजोर है। एक्चुअल हिब्रू व ग्रीक वर्ड इसमें क्या है? व्हेन वी सी गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन इन आवर माइंड, हाउ कम जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग एंड हाउ कम सेटन इज द लॉर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड? किसी को सवाल उठा है? Somebody, did you all get this question in the mind? If God is the Lord of everything, how is Satan is the Lord of this world? You can say it's a fallen world, so he's a Lord. Let me tell you something. You have to study the Bible. वचन को गहरा तरीके से पढ़ना जरूरी है। आजकल वैसे ज़बरदस्त टूल्स आपको मिलता है ऑनलाइन में जो बिल्कुल मुफ्त है, जिसके यदि आपके अंदर इच्छा है कि मेरे को इसके बारे में जानना है तो आप जान पाओगे। वो ये है कि ये जो वर्ड है, Satan is the god of this world, ग्रीक वर्ड उसका है eon. How many of you know the word eon? Eon means a long period of time. It's not the world. संसार नहीं है, एक लंबी समय है। Your Mount's concise Greek and Hebrew dictionary says it's like this: period of time of significant character. Period of time of significant character. Eon means एक लंबा समय जिसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, एक चरित्र वहां असर करता है। फॉर एग्जाम्पल 10 years AAP रूल्ड दिल्ली, तो क्या करते हैं हम? फॉर 1 decade AAP ने रूल किया दिल्ली को। बट hundreds of years somebody is ruling, we say centuries तक
रोमन एम्पायर लास्टेड फॉर सेंचुरीज करके बोलते हैं हम. बट बियॉन्ड सेंचुरीज क्या बोलते हैं? इयॉन बोलते हैं. लॉन्ग टाइम के लिए एक पर्टिकुलर इफेक्ट हो रहा है. So, this Satan who is the God of this world is not God of this world. The Satan who was ruling for a certain period, a certain eon. Okay? He has blinded the mind of the people. Please understand, devil is not the Lord. I just want to clarify these words before we go deeper into the study of the word. Okay? Satan is not the Lord. इधर क्या है शब्द? जो लंबे समय तक राज्य कर रहा था उसने, द लॉर्ड ऑफ द ईयन, दैट पर्टिकुलर पीरियड इज टुडे डेविल्स ईयन. अभी क्या शैतान का राज्य है क्या? बताइए. स्क्रिप्चरली नो. दिस इज अ पीरियड ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. ओके, शैतान एक समय राज्य कर रहा था. इट वाज द ईयन, ही वाज द किंग ऑफ दैट ईयन, बट ऑन द क्रॉस ही वाज स्ट्रिप्ड नेकेड. हालेलुया. क्रूस हमारी मसीह जीवन में क्यों इतना महत्वपूर्ण है? मैं हमेशा ये बोलता हूं कि मतलब गहरा प्यार का चिन्ह क्या है? नॉर्मली प्रेम और प्यार का चिन्ह एक हाथ डाल के उसके बीच में एक तीर लगा देते हैं ना. इसका मतलब क्या है? वैलेंटाइंस डे. शादी कर ले तू पहले. द ग्रीक गॉड क्यूपिड, गॉड ऑफ लव, इज सेंडिंग एन एरो. लव ऑलवेज कम्स विद एरो. But I say that is not a symbol of love. That is a symbol of, open heart surgery. Symbol of love is cross, my dear friend. The greatest symbol of love is the cross. Hallelujah. Okay, इसके आगे कोई चिन्ह है ही नहीं जो प्रेम को दर्शा सकता है जितनी गहरा तरीके से क्रूस हमें दिखाता है. उस क्रूस में क्या हुआ? सिर्फ प्रेम ही नहीं दिखाया गया, सिर्फ आपके दंड को परमेश्वर ने अपने ऊपर लेकर आपको छुटकारा नहीं दिया, सिर्फ आपको अंधकार की राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में नहीं लेके आया, लेकिन उन्होंने इस धरती में जो यौन की तरफ जो राज्य करा था उसको, उसका अधिकार को सबको निकाल के उसको नंगा कर दिया. हालेलुया. आप समझे मेरी बात को? तो वो किधर है? इट इज देयर इन कोलोशियंस 2:15. वी ऑल नो दिस, राइट? वी ऑल नो द बाइबल वर्सेस वेरी वेल, राइट? ओके, 3:17 वी डिड नॉट नो, दैट इज ओके, ठीक है. बट कोलोशियंस 2:15, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. हिंदी में एक बार पढ़िए. कोलोशियंस 2:15. एंड हैविंग डिसआर्म्ड द पावर्स एंड अथॉरिटीज. इसका मतलब यह है कि जब आदम और हवा साथ में मिलकर कांड कर दिया, उस समय से लेकर क्रूस में परमेश्वर अपना जीवन देने तक वो राज्य कर रहे थे. ये उनका इयॉन था. क्रूस में कोलोशियन 2:15 में वो खत्म हो रहा है. खत्म होके क्या शुरू हुआ? राज्य शुरू हो गया. द किंगडम ऑफ गॉड हैज स्टार्टेड. Having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई. हालेलुया. Are you with me? तो वो शैतान जो दांत के साथ सबको काट रहा था, उसके बाद उसका दांत तोड़ा गया. अभी उसके पास दांत नहीं, सिर्फ आवाज करता है. ठीक है ना? Now coming back to our action. So this is what it means. The Satan who, the translation should be like this. ये जो translation ऐसा होना चाहिए. Satan who was the God of eons is now no more the God of eons. It's our God Almighty who is our God now, because His kingdom has come. Where are we? According to Colossians 1:13, we are in the kingdom of God. Hallelujah. We are also in this world. मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं. हमारा मॉडल, हमारा एग्जाम्पल कौन है हमारे आत्मिक रूप में? जीसस क्राइस्ट. ही इज द मॉडल बेस्ड ऑन whom our spiritual life is shaping. That's what we see in Romans, right? Those whom He called, He predestined. He called whom He called, He sanctified. Those He sanctified, He glorified, to conform to the image of His Son Jesus Christ. All of us at one point of time, एक समय पे हम सब यीशु मसीह के रूप में आ जाएंगे. तो रूपांतरण चीज बदलते जा रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र शास्त्र में उन्होंने अपने को कैसे दर्शाया, और उसमें से हमें कुछ सीखने को मिलेगा. स्पेशली मन की आंख खोलकर जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है, उस चमत्कारों को देखने के लिए. नंबर 1, was Jesus tempted by the devil? Yeah.
उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसके बाद रेगिस्तान में गए, 40 दिन उन्होंने उपवास किए। किसने ले गया उनको? वचन में पढ़ते हैं, समय कम होने की वजह से मैं आपको रेफरेंस देता हूं। मत्ती 4:1 से लेकर 10 तक देखते हैं। जीसस वॉज लेड बाय द स्पिरिट इनटू द विल्डरनेस। नाउ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में क्या करता है? पवित्र आत्मा में, हाँ जी, सिखाता है, गाइड करता है। और उन्होंने पहले ही एक टेस्ट केस बना के रखा है यीशु मसीह के द्वारा, ठीक है। हमेशा लैब में हम टेस्ट करते हैं ना, और एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकलता है, और जो रिजल्ट हमें मिल गया उसी फार्मूला को और उसी मिक्सिंग प्रोपोर्शन को हम फॉलो करते हैं केमिस्ट्री में। इसी तरफ पवित्र आत्मा ने कुछ चीज़ें पवित्र शास्त्र में हमारे लिए दर्शाया है कि हमें करना क्या है करके, ठीक है। वो क्या है? पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को रेगिस्तान में ले गया। 40 दिन उपवास रहने के बाद प्रलोभन देने वाला टेम्पटर आ गया था। टेम्पटर आके उन्होंने 3 बार परमेश्वर को प्रलोभन दिया है कि नहीं? Yes or no? 3 times he was tempted. First time, what is that? He is saying, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. And then Jesus answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Man means you and me, man and woman. बहुत गहरा वचन है, इसके अंदर 1 साल तक हम प्रचार कर सकते हैं, बट मैं उसको स्किप कर रहा हूं और किसी दिन के लिए, जैसे पवित्र आत्मा में आपको देगा। आपके जीवन की हर कदम वचन के अनुसार रहेगा। विजय के अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। हालेलुया। If your steps are determined by the word of God, inspiration of the Holy Spirit, revelation of the word of God, nothing can put you down, my friend. Amen. Because we are representing a king. Please understand who we are. Okay. Number 2, if you are the Son of God, throw yourself down. For it is written, he will command his now. Devil also knows the verses. शैतान भी वचन सब जानता है, ठीक है ना। And then Jesus says, it is also written, do not put your Lord God to test. Okay, it's there in Deuteronomy 6:16. Second. And now, first 2 things, devil is telling Jesus, prove that you are a son of God. Both the questions are there. Questions to you by the devil will always be, he will not ask you whether you are a believer. He will straight away tell you, you are worthless. You are a sinner. आप पापी हो, आप लायक नहीं हो। और क्रूस को दिखा के बात करेगा वो। इतना प्रेमी प्यारा परमेश्वर अपना जीवन देकर आपको रचनाया, आपको बचाया, और आप पाप में फंसे हो। कैसे इंसान है यार तू? आप दोषी फील करोगे। हालेलुया। Yes or no? The first attack will be on your identity by the devil. शैतान की हमला आपकी आइडेंटिटी के ऊपर होगा। तू वो नहीं है जो रविवार को प्रचार पादरी ने आपको बताया। वो क्या है? परमेश्वर के संतान। हालेलुया। Are you with me? I always tell you the Bible is written for everybody. It is written for prostitutes, it is written for sinners, it is written for convicts, it is written for the devil, it is also written for the children of God. If you see yourself as a child of God, you will only absorb those things that are written for the child of God. अब मन समझे मेरी बात को? यदि आप अपने आप को पापी समझ के पढ़ते तो उस पापी का सारे शब्द आपके पास आएगा। आपको सावधान रख के वचन पढ़ना बहुत जरूरी है कि यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड एंड रीड द बुक एज द चाइल्ड ऑफ गॉड रिटन बाय द फादर टू द चाइल्ड। हालेलुया। नंबर 2, आइडेंटिटी को क्रॉस करेगा। ठीक है, आप मजबूत हो गया, नहीं मैं तो परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और मेरे को कोई हिला नहीं सकता, मैं जानता हूं मैं कौन है। फाइनल तीर वो डालेगा। वो क्या है? What did he tell Jesus? 8. Again, the devil took him to a high mountain and showed him all the kingdoms of the world and the splendor. Okay, material wealth. All this I'll give you if you fall down and worship me. Jesus tells him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. Okay, now, this is a model for every believer. क्या है? The Holy Spirit led Jesus on the desert. After 40 days, these 3 questions by the devil are taken care of by Jesus. And this is the format you have to follow. कितने लोग स्कूल में एग्जाम पेपर लिखे? क्वेश्चन पेपर एग्जाम। वी हैव अ लेक्चरर हियर, है ना। क्वेश्चन पेपर के अंदर कई सारे फॉर्मेट है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, फिर एसे राइटिंग, है ना।
तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि मतलब ये आंसर शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, ऐसे राइटिंग है। फॉर्मेट नहीं पता तो आप मार्क आपको कम हो जाएगा। फॉर्मेट है ये। यीशु मसीह ने आपके लिए एक फॉर्मेट दिया है। क्या फॉर्मेट है? आपकी जीवन में कोई भी प्रलोभन आएगा, वचन के अंदर जाओ और प्रबल उनको सामने करके बोलो, इट इज रिटन। हालेलुया। द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज योर अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड शील्ड। हालेलुया। यदि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को यह बोलना पड़ा कि ये लिखा हुआ है, तो हम कौन है? आमीन। Example. Let's come to the last temptation. This is with reference to the verse for the month. Don't you see? God is asking. What is the devil saying? He is showing the world. He is showing the world. एक जबरदस्त ड्राइंग देखा मैंने। I don't know where I'll get it somehow. उसमें शैतान ऐसा खड़ा है, ऐसा खड़ा होके ऐसा दिखा रहा है, उस तरफ पूरा वर्ल्ड है, देखो। And Jesus is turned this side. यीशु मसीह इस तरफ घुमा हुआ है, इसको जवाब दे रहा है। He's not even turning that side. कितने लोग शोरूम में जाकर किसी सेल्समैन ने हमें कुछ चीज बेचने के लिए कोशिश किया? किसी ने अनुभव किया है? I was a salesman all my life and I hardly sold anything. That's a different story. क्या करता है? जाके बहुत अच्छा, कितने का? अरे पहले देखो ना। है कि नहीं? अरे देखो भाई, देखो इस पे क्या है कि इतनी जीबी का मेमोरी है और इतनी कैमरा। अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है, कितने का? पहले आप हाथ में पकड़ो उसको। हाथ में पकड़ो ना। हुआ है कि नहीं हुआ? आज भी होता है। ओके, दैट इज व्हाट द डेविल विल टेल यू। पहले देखो ना, 40 साल हो गया आपको तो शुगर आएगा ना। हेलो, 40 साल उम्र का हो गया तो शुगर आएगा आपके पास। कौन था? गब्रियल ने आके बोला कि आपको, या एंजल माइकल ने आके आपको कन्फर्म किया? ना कि आप एक डॉक्टर हो। इट्स द डेविल ऑफ द वर्ल्ड इज शटिंग यू डाउन। हाँ, ये खाओगे तो मर जाओगे, वो खाओगे तो पिघल जाओगे। कुछ नहीं होना है। हालेलुया। आर यू विद मी? डोंट फॉल फॉर व्हाट द डेविल इज शोइंग। शैतान जो दर्शाता है उसमें आप मत फंसो, ठीक है? उसमें फंस जाओगे, परमेश्वर जो आपके जीवन में करना चाहता है उस महत्वपूर्ण चमत्कार को आप देख नहीं पाओगे। जब तक आपको दिखता नहीं, आप उसको महसूस भी नहीं कर पाओगे। चमत्कार तो होते रहेगा। कितने लोग को लग रहा है कि जिंदगी में मेरी सबसे बड़ा चमत्कार हो रखा है ऑलरेडी? मैं तो कहूँगा, अरे महामारी पार करके हम यहाँ बैठे। एनी डे अबव ग्राउंड इज अ ग्रेट डे। हालेलुया। The greatest miracle has already happened for us. But परमेश्वर का ये तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपकी जिंदगी में करने वाला हूं। आंख खोल के देखो मेरे भाई। हालेलुया। शैतान जो आपको दर्शा रहा है उसको आप मत देखो। हालेलुया। और आपकी हर प्रलोभन आपकी दर्शन से आता है। Every temptation, every challenge comes from what you see and what you hear. Yes or no? Yeah. Why God? Why do I see this? You don't see, man. Who asked you to turn the other side? Okay. And brother gave that beautiful verse, John 3:17. Can somebody read John 3:17? We all know John 3:16. For God so loved the world. After that is the punch dialogue that we are missing out. What is that? For God sent, so that, I mean, this हिंदी में पढ़िए ब्रदर इसको। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। दंड की आज्ञा के लिए क्या ये जगत लायक है कि नहीं? पाप का गड़ा भर गया कई साल पहले, आपकी और मेरी भी। और हमें परमेश्वर ने अपने गहरा प्रेम भाव से, कुर्बान से हमें माफ किया है और हमें जजमेंट नहीं कर रहा है। तो क्या हिम्मत होना चाहिए हमें और किसी को देखकर हम जजमेंट करें? हेलो, कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? जब प्रमेय यीशु मसीह का प्रेम आपको दिल को बढ़ता है ना, वो जजमेंट करने वाला जहर अपने आप निकल जाएगा। हालेलुया। ज्यादा ग्रीक हिब्रू पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा आप जाइए, बट सिंपल चीज ये समझिए, मैं एक लायक नहीं था।
मैं पाप में भरा हुआ था किसी भी चीज के लिए, इस जीवन के लिए मैं लायक नहीं था, बट प्रभु ने हमें खड़ा किया by his great love. Hallelujah. How much more should I be loving to my people? Why is Gideon struggling to give the word of God to the ends of the earth so that the soul can be saved? Why is the preacher standing here and preaching, drying up his throat? So that you understand the word. The first experience in a believer's life is the experience of salvation. The next most experience is living the life of kingdom on this earth. Amen. Hallelujah. भाई ये धरती को जीत कर यीशु मसीह के लिए जीतना हमारा हक है. Are you with me? And the kingdom of heaven will work only through us. Are you with me? If you are not effective in that area, kingdom is lacking something. इसलिए आपकी पूरी जीवन गवाह होना चाहिए. That's what the word of God says. No, yesterday Gideon gave a beautiful thank you card, Pastor. In that it is written, so that the men may see your good works and praise your God in heaven. That is witness. What is that verse? Amen. So that men may see your good works and praise your God in heaven. इसका मतलब क्या है? Rowan, can you just ping that verse, please? So that men can see your good works and thank God in heaven. Is this कि आपकी आत्मिक जीवन का फल इस सोसाइटी में, आपकी फैमिली में, आपकी कम्युनिटी में दर्शाना चाहिए. और इस दुनिया में सबसे कमजोर चीज क्या है जी? What is this world that is lacking? Come on. What is lacking in this world? हाँ जी, इंसानियत. हिंदी में बोलो तो इंसानियत बोल सकते हैं हम. People lack compassion. And God has kept you and me as personified compassion of Jesus on this earth. When your eyes are blinded by the worldly passions, you will become the devil's advocate. Are you with me? जब आपके दिल में ना परमेश्वर का प्रेम नहीं बढ़ता है ना, आप उस काम में फलदायक नहीं होगे जिसके लिए प्रभु ने आपको यहाँ नियुक्त कर रखा है. हालेलुया. और आपकी नजर राज्य, वचन और परमेश्वर के प्रेम से मोड़ के दुनिया की तरफ गया तो संडे आना भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. हेलो, आर यू विद मी? मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, अलग बात है. ओके, बट मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, आपकी 7 दिन में कितने बार आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनने को मिलता है, जिसने आपके लिए अपना जीवन कुर्बान किया और जिसने महामारी से बचा के यहाँ बिठा रखा है. 1 घंटे सुनने को मिलता है ना, पूरी 7 दिन में 1 घंटा. बाकी समय में देखिए, another 5 minutes I'll close, I think. What's that time? How many of you are enjoying this message? झूठ नहीं बोलने का, कौवा काटेगा. ठीक है, just a minute. Oh, I have 2 minutes. Okay, I'll pause the timer. दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस महीने का वचन जो है ना, चमत्कार प्रभु कर रहा है. नदी प्रभु बहा रहा है, खंडारा में, जंगल में मार्ग प्रभु लेके आ रहा है. हमें करना क्या है? देखना है. देखना मुश्किल है क्या? लेकिन नजर एक ही है. या प्रभु की तरफ देखो या तो संसार की तरफ देखो. संसार कहेगा आपका ब्लड प्रेशर आ गया है, आप मर जाओगे. वचन कहता है लंबी उम्र से मैं तेरे को तृप्त करूंगा. हालेलुया. नजर, बॉस मेरे को प्रमोशन नहीं दे रहा, मेरे को तो कुचल के नीचे रखा है. वचन कहते कि तू तो सर बनेगा ना कि पूंछ. भविष्यवाणी अपने समय में पूरा होगा, ना कि आपके समय में. तो आपको थोड़ा ठंड रखना जरूरी है. हालेलुया. कभी हमेशा भाग दौड़ में नहीं रहने का है. अब बट ये मान के चलो कि यदि प्रभु ने आपको चुना है तो एक महत्वपूर्ण चीज के लिए आपको चुना है, और उस महत्वपूर्ण चीज को देखने से शैतान आपकी आंख को बंद करता है. इसलिए सवाल यह है कि मैंने शुरू कर दिया है नया काम आपके जीवन में, क्या आपको दिख नहीं रहा? नहीं प्रभु, नहीं दिख रहा है. कोई बात नहीं, पास्टर को कॉल कर ले, वो बता देगा आपको. पहले रविवार को आना शुरू कर समय पे. हेलो, आर यू विद मी?
Start coming to church every Sunday morning on time and you will start seeing God. Okay, you want to see IMAX theater but ticket भी नहीं खरीदा, कहाँ से दिखेगा आपको? Okay, you want to see IMAX picture of heaven? Come on time to the service. That is your ticket. Hallelujah. And then whoever comes to God must believe that He exists. And here, which is a beautiful verse. Here it is. Let me take it. Hebrews 11:6. Hebrews, I love this. Love it, man. Love it. And without faith, it is impossible to please God. Okay? But anyone who comes to God must believe that He exists and He punishes in the right time to teach us a lot of things. Is that so? He rewards those who earnestly seek Him. Hallelujah. Every good and perfect gift comes from God alone. Everything else comes from the devil. Sickness from the devil. Poverty from the devil. Failure from the devil. Emotional turbulence from the devil. God never gives it, my friend. Go to the book of Job and it says, God gives and God takes away, all glory to God. Wrong! Later on, Job always says, I have heard about you, now I have seen you, so I keep my mouth shut. Hallelujah. Even in the book of Job, for all the problem that Job has, did it come from God or the devil? Devil went and asked permission and then he did it. Unfortunately, for half-baked Job's statement, we all fall victims and consider our failures as coming from God. Never. God lifts us from our failures. Lifts us from our infirmities. Hallelujah. हमारी कमजोरी से, हमारी फेलियर से प्रभु हमें उठाता है. वो क्यों आपको मारेगा? Remember, Jesus came only for one thing. He came to give us life. और बोधदायक जीवन. बोधदायक जीवन का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि हर चीज रख के मैं 4-5 गाड़ी नहीं. आपके पास यदि धन हो या ना हो, आप कंगालपन में हो या अमीरी में हो, आपका उस दिल के अंदर की खुशी किसी को खींचने का हिम्मत नहीं होना चाहिए. Are you with me? What is abundant life? Abundant life is this. Whether you are in poverty or in abundance, the joy of the Lord should not leave your heart. Hallelujah. How is it possible? That is Jesus. That's what Paul says. I've learned to be in poverty as well as in abundance. Okay? आप समझे मेरी बात को? ऐसा हो गया सुबह उठते ही मेरा बीवी ने मेरे को ठोक दिया तो यार मेरा मूड खराब हो गया. देखो कुछ चीज ऐसा है सोशल साइंस आपको फॉलो करना पड़ेगा. बीवी ने आपको ठोक दिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मैं खुशी में हूं. Are you with me? कुछ बोलते हैं पास्टर प्रलोभन का मेरे को बाहर से जरूरत ही नहीं, मेरी शादी हो रखी है. Please understand, union of marriage is a holy thing. It's a plan of God. Okay, so that we can grow and multiply. Today we have a lot of IVF clinics. See where the devil is coming. See where the devil is coming. Why are we having IVF clinics? In this church, whoever came and said, we don't have a child, we prayed and they had a child. Hallelujah. You get my point? IVF clinics are shown by the devil. And the word of God says, follow और पृथ्वी को राज करो. आप किस तरफ देखना चाहते हो? See, I have started a miracle in your life. आज के दिन तक आपके जीवन में जो भी असंभव कार्य संसारिक नजर में हो रखा है, आज आप विश्वास करना शुरू करो. असंभव चीज को संभव करने वाला प्रभु मेरे साथ है और मेरी नजर का भी मोड़ूंगा. हालेलुया. और जिस मकसद के लिए प्रभु ने हमें जमीन के ऊपर रखा उसको पूरा करके ही हम यहाँ से निकलेंगे. हालेलुया. आइए आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे. थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल टाइम. वी प्रेज योर नेम फादर. God, help us to see what you are doing in our life. Whatever the jungle that is there in our life, Father, you are making a path through that. Whatever the barren lands in our life, God, you are making a river flow through that. But God, we pray, open our eyes of understanding to see this amazing thing happen in our life. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे जीवन के जंगल में मार्ग बनाने वाले आप हो प्रभु. सूखा हुआ खंडारा भूमि में प्रभु हमारे जीवन की प्रभु वहाँ नदियाँ बहने वाले आप हो प्रभु. होने दे प्रभु, हम मन की आंखें खोलकर इन चीजों को देख नहीं पाए.
आपकी पवित्र आत्मा का सहायता मदद मांगते हैं प्रभु। क्षमा कर प्रभु, जो भी प्रभु हमने समय प्रभु बर्बाद किया है प्रभु। Father, we ask your forgiveness and we pray, God, that every minute of my life from now will be focused on the kingdom of God. And when the King of Kings is with me, nothing can come against me. Thank you, Jesus. I pray in this week, Father, we will continue to see the miracles that you continue to do in our lives and glorify your name. In Jesus' precious name I pray. Amen. Amen. Shall we say the grace together, please? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और